Hello guys, welcome to my channel. So I have brought this new channel that is Build Up. I hope you like this channel and I assure you that I will enhance the terms of banking and also the mind of terminology. So basically I've came with new video of banking of terminology, that is a bill of exchange. So without wasting the time, we'll go to the slide of a bill of exchange where the term, party and types will be explained you in this video. So, what is the bill of exchange? According to Section 5 of Negotiable Instrument Act, a bill of exchange is an instrument in writing containing an unconditional order signing by the maker directly a certain person to pay a certain sum of money only or to the order of a certain person or the bearer of the instrument. So negotiable instrument के 3 instruments है. कौन से हैं? Check, दैट इज़ बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट. इसमें से बिल ऑफ एक्सचेंज आ जाता है एक इंस्ट्रूमेंट जहाँ पे ये राइटिंग कंटेन होता है, जहाँ हम एक मेकर दैट इज़ द ड्रॉवर विल बी एक्सप्लेन आफ्टरवर्ड्स. आई विल शो यू कि क्या क्या पार्टीज हैं, सो इट विल बी ईजी टू नो यू. बट एक मेकर मतलब जो बनाता है, ओके, बिल ऑफ एक्सचेंज जहाँ पे सर्टन पर्सन टू पे सर्टन सम ऑफ मनी. जैसे इमेजिन अ चेक में जैसे हम पार्टी का नाम लिखते हैं, डेट लिखते हैं, अमाउंट लिखते हैं, वैसे ही ये बिल ऑफ एक्सचेंज होता है. सो ये मेकर जो होता है वो बनाता है जहाँ पे नाम लिखा जाता है, डेट एंड अमाउंट. अब ये किसके लिए होता है? ये ट्रेड ट्रांजैक्शंस जो होता है, बिजनेसमैन जो यूज़ करते हैं, यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज ज़्यादा यहाँ पे यूजेबल होता है. बिल ऑफ एक्सचेंज इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, जहाँ पे एक ऑर्डर गिवन बाय एन सर्टन पर्सन टू अदर पर्सन टू पे अ सर्टन अमाउंट ऑन अ सर्टन डेट. अब यहाँ पे हम पार्टीज़ देख लेते हैं. इट विल बी ईजी टू नो एग्जैक्टली क्या कैसे रूटीन या ये साइकिल होती है बिल ऑफ एक्सचेंज की. अब ड्रॉवर होता है, यहाँ पे ड्रॉवर एंड मेकर आर द वन and the same. That the maker is a person who draw a bill of exchange. जहाँ पे ये बनाता है maker of the bill. He is liable to receive the amount. Drawee कौन होता है? जहाँ पे whom the bill of exchange is drawn. जहाँ पे वो liable है to pay the amount. Pay क्या है? जो who is entitled to receive the amount of the bill of exchange. He is a drawer himself. If the bill is endorsed, जहाँ पे endorsed हो गया, then he is liable to receive the amount. अब ये पार्टीज 3 हो गए. इस पार्टी में there are the different types also, जहाँ पे कौन से बेसिस पे आपको ये transactions करने हैं. So it will be easy for the trader to do it. So we'll go to types of bill of exchange. यहाँ पे types है. That is a bill of exchange payable on demand, bill of exchange payable after date, inland bill of exchange, foreign bill of exchange, accommodation bill of exchange, bills and sets, drawee in case of need. So ये types है, यहाँ पे हम explain करते हैं. It will be very easy to know हमें कौन से basis पे bill of exchange करना है. First, demand and set of credit period, the word demand will be specified in the bill of exchange. यहाँ पे exactly ऐसा है कि credit period जो है, यहाँ पे वो word demand यूज़ करा जाता है. Now I will explain you in a simple way कि जहाँ पे maturity date जो होती है या grace period होता है वो mention नहीं करा जाता है. There is only word demand, that is the only thing date you have been mentioned and specifically उस time पे आपको payment करना है. एंड पेबल आफ्टर डेट क्या है कि जहाँ पे आपको मैच्योरिटी डेट इज मेंशन बाय एडिंग द ग्रेस पीरियड. सो डिफरेंस आपको समझ में आ गया कि क्या है एग्जैक्टली डिमांड और डेट में. कि डिमांड में जहाँ पे मेंशन नहीं करा जाता है मैच्योरिटी डेट, और डेट जो लिखा है आफ्टर डेट वहाँ पे मेंशन करा जाता है मैच्योरिटी डेट एंड द ग्रेस पीरियड. अब इनलैंड बिल ऑफ एक्सचेंज इनलैंड में ही बोला है. सो इन दिस वर्ड ओनली यू गेट दैट कि यहाँ पे इन्वॉल्व पार्टी जो होती है, ड्रॉवर, ड्रॉई, पेई, ये तीनों ही इन्वॉल्व है इन द सेम कंट्री. सो दैट इज़ अ बिल ऑफ एक्सचेंज. फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? फॉरेन ही वर्ड यूज़ होता है कहाँ? डिफरेंट कंट्री.
where the parties are in different country and the transaction are being held on. So इस टाइम पे हम उसको फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज बोला जाता है. अकोमोडेशन बिल ऑफ एक्सचेंज क्या बोलेंगे, जहाँ पे ड्रॉ and accepted without consideration to help some other person with fund. Accommodation मतलब अगर आपको यहाँ पे in case if you want to give a fund without, ये जनरली ट्रेड बिल नहीं होता है. बेसिकली ये इसको होता है जहाँ पे हम ऑब्लिगेट करते हैं फ्रेंड को या हम नोन पर्सन को करते हैं, उसको ये अकोमोडेशन बिल ऑफ एक्सचेंज बोला जाता है. बिल्स इन सेट्स, इट्स अ जनरली ये केस किसके लिए होता है पता है, ये फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए होता है. फिर कभी कभार ये फार अवे प्लेस की वजह से चांसेस होते हैं लॉस्ट के, तो उस पॉसिबिलिटी के लिए वो लोग क्या करते हैं कि एक कॉपी बनाते हैं प्रेजेंटेड टू इंश्योर एटलीस्ट वन में रिच, कोई एक तो रीच हो जाए. दैट्स द रीज़न ये बिल्स इन सेट्स बिल ऑफ एक्सचेंज होता है. ड्रॉई इन केस ऑफ नीड किसके लिए होता है कि पर्सन नेम इन द बिल टू बी पेड एंड ड्रॉई इज़ अनएबल टू पे. मतलब बेसिकली मैं एग्जांपल के बेसिस पे बोल देती हूँ कि ये जो ड्रॉई इन केस ऑफ नीड, जहाँ पे ए अगर पार्टी है जो उसको राइट करना है पे, उसको पेमेंट करनी है, पेमेंट लेनी है, तो बी को उसको पेमेंट देना है, बट इन दिस केस बैंक रिफ्यूज़ टू पे. कुछ केस की वजह से या इनसफिशिएंट बैलेंस की वजह से, कुछ वजह से वो नहीं कर पा रहा, तो ही कैन नेम एज अ सी पर्सन, लाइक वो मेंशन कर सकता है सी पर्सन एज अ ड्रॉइंग केस ऑफ नीड. सो सी इज़ प्रेजेंटेबल या प्रेजेंटेड द चेक. सो इन दिस केस ए बी सी, ए जो है वो नहीं पे कर रहा है, इसके लिए वो सी को इन्वॉल्व कर रहा है पेमेंट करने के लिए बी को. सो दिस इज़ द somewhat drawing in case of need. So in short, मुझे ये वीडियो बहुत एक्सटेंड नहीं करना बिकॉज ओनली वन टर्म है, दैट्स बिल ऑफ एक्सचेंज, एंड आई वॉन्ट यू टू लाइक दिस, सब्सक्राइब इट एंड प्लीज़ शेयर कि ताकि ये बिल ऑफ एक्सचेंज सभी को पता चले कि ये क्या इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि ये जब पता नहीं रहेगा तो हम इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे जब हमें यूज़ करना है ट्रेड ट्रांजैक्शन के लिए. सो गो फॉर द बिल ऑफ एक्सचेंज विच इज़ वेरी मच फिजिबल एंड ईजी टू डू इट. सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आप ये लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो. थैंक यू.